मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اور لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، پھر جب اس کو تکلیف دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں تو بنا لیتا ہے لوگوں کی سزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی طرح۔ اور اگر پہنچتی ہے کوئی مدد تیرے رب کی طرف سے تو کہنے لگتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ میں ہیں۔ کیا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو جو جہان والوں کے دلوں میں ہے۔ اور البتہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم کر لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور ان کو بھی معلوم کر لے گا جو منافقین دغا باز ہیں۔ اور کہتے ہیں کافر لوگ ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے کہ تم ہمارے پیچھے چلو، ہماری راہ پر چلو، ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کو۔ درا حالانکہ وہ نہیں اٹھائیں گے ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی، بے شک وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ عنکبوت سن رہے ہیں، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر آپ حضرات کے سامنے 10 اور 11 اور 12 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں سے پہلے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا جو پیغام آپ تک پہنچا تھا وہ والدین کے متعلق پہنچا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو یہ حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے۔ اور حسن سلوک میں یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، لیکن اس حد تک فرما برداری اور اطاعت کرے کہ جہاں تک دنیا کی چیزیں ہیں اور دنیا کے اعتبار سے اگر ماں باپ کفر کا، شرک کا، گناہ کا حکم دیتے ہیں تو پھر ماں باپ کو چھوڑ دینا چاہیے، ماں باپ کے حکم کو ٹھکرا دینا چاہیے اور اللہ رب العزت کے حکم پر چلنا چاہیے۔ اگرچہ ماں باپ آپ کے اوپر کتنا بھی پریشر ڈالے، کتنی بھی زور ڈالے، لیکن آپ کو ان کی بات نہیں ماننی ہے، چاہے وہ مر جائے آپ کے اس غم میں، چاہے وہ واقعہ آپ کے سامنے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا آپ حضرات کے سامنے وہ سنایا تھا پچھلی تفسیر میں۔ کیونکہ اگر ہم اللہ کی محبت کو لے کر گئے اور ماں باپ ہمارے اوپر گناہ کا پریشر ڈالتے رہے تو یاد رکھو ماں باپ کو بھی اور تمہیں بھی اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے۔
फैसला वहां होगा। फिर जो लोग नेक आमाल करते हैं, ईमान लाए हैं, अल्लाह के हुक्मों की इताअत करते हैं, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उनको अपने नेक लोगों में शामिल कर लेते हैं। ये यहां तक सबक था। आज के सबक में यह पैगाम है कि कुफ्फारे मक्का, मक्के के अंदर हिजरत से पहले जो लोग नए नए मुसलमान हुए थे, जो लोग नो मुस्लिम थे, तो नो मुस्लिम जो थे, जो ये कहते थे कि दावा उनका ये था कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जब उनको कोई तकलीफ पहुंचती, कुफार की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचती, जैसे हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को मारा गया, इस तरह की तकलीफें बहुत थी हिजरत से पहले मक्के के अंदर। तो मुसलमानों को जो भी तकलीफ पहुंचती, तो ये नए नए जो मुस्लिम थे, मुसलमान थे, फौरन मजहब इस्लाम को छोड़कर कुफ्र के अंदर चले जाया करते थे और यूं कहा करते थे कि ये जो लोग हमें सता रहे हैं, हम मुसलमान हैं और हमें लोग सता रहे हैं, ये अल्लाह का अजाब है। अल्लाह के अजाब से लोगों के सताने को तशबीह दिया करते थे। हालांकि अल्लाह के रास्ते में कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई परेशानी अगर पहुंचती है तो ये अल्लाह का अजाब नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ से इसके ऊपर सवाब दिया जाएगा। लेकिन वो उस सवाब को, क्योंकि नए नए मुसलमान थे, जैसे कि कुछ देहात के लोग ऐसे थे कि वो लोगों की देखा देखी मुसलमान हो जाया करते थे, और अगर उनके यहां लड़का पैदा हो गया या उनके जानवरों के में नस्ल चल गई, तो फिर तो ये कहते थे कि बहुत अच्छा मजहब है, बहुत मुबारक है। और अगर उनके यहां लड़की पैदा हो गई और कारोबार ठप हो गया, तो फिर यूं कहकर छोड़ दिया करते थे, ये तो बहुत खराब मजहब है, यूं कहकर के अपना फिर कुफ्र शिर्क में चले जाया करते थे। ये हालात थे मक्के के हिजरत से पहले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज के सबक में उन सब लोगों पर रद्द किया है। और कुछ मुसलमानों के ऊपर जब मुसलमानों को कोई कामयाबी मिलती थी, फतह मिलती थी, मुसलमान गालिब होते देखते थे, तो ये नए नए मुसलमान फौरन आकर कहते थे, हम तो तुम्हारे साथ में हैं, हम तो तुम्हारे साथ में हैं, यानी हमारी तो दिल की तमन्ना आपके साथ में लगने की है, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, इन दगाबाजों को मैं खूब जानता हूं, ये सिर्फ मुंह के मुसलमान है, दिल के मुसलमान नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर यह भी फरमाया कि जो रब लोगों के सीनों की बात भी जानता हो, वो तुम्हारे इन खेलों को नहीं जानता जो खेल खेल रहे हो तुम, इन सब को भी वो जानता है। जब सीनों की बात का उसे पता है क्या कर रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप कैसे मुसलमान हो, दिली मुसलमान हो या जबानी मुसलमान हो, जब अल्लाह को यह भी मालूम है, तो फिर ये कहकर के हम तो तुम्हारे साथ में आकर मिल जाना, और मुसलमानों को जब फतह देगी तो हम तुम्हारे साथ में, और जब कोई मुसीबत पहुंचती तो कि तुम्हारा मजहब तो बहुत खराब है, हम तो अपने मजहब में चलते हैं, तो अल्लाह को इसका नहीं मालूम है। उसी के ऊपर रद्द फरमाया वल्लज़ीना आमनू, फरमाया वमिनन नासी मन यकूल, और लोगों में से एक वो है जो कहता है आमन्ना बिल्लाह, कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, देखा देखी मुसलमान हो गए। उन लोगों का नए नए मुसलमान, फइज़ा ऊज़िया फिल्लाह, फिर जब अल्लाह के रास्ते में कोई तकलीफ पहुंचती, जब कोई आजमाइश आती, जो कोई तकलीफ पहुंचती, फिर क्या कहते, जअला फितनतन नास, बना लिया करते लोगों की सजा को कअज़ाबिल्लाह, ऐसे जैसे अल्लाह का अजाब, यानी अल्लाह के रास्ते में चलकर हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अल्लाह के रास्ते में है, लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग कोड़े मार रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में है, किस तरीके से सताया जा रहा है। तो इस सताने को उन लोगों ने यह समझ लिया कि अल्लाह का अजाब है। आज जैसे कि हम मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर, आज हमें लोग हर मजहब वाला सता रहा है,
मुसलमानों को जहां चाहे पीट दिया, जहां चाहे मार दिया, जहां चाहे मुसलमान बहनों के साथ रेप कर लिया। इस तरह की जो तकलीफें आज हमारे साथ आ रही है, तो जो नए नए मुसलमान हैं, नए नए का मुसलमान का मतलब यह कि जिन्होंने शरीयत को पढ़ा नहीं, शरीयत को समझा नहीं, आल सल्लम की सीरत को नहीं पढ़ाए, नहीं समझाए, बयानात नहीं सुनते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, कुरान नहीं समझते हैं, तो उन लोगों के दिमाग के अंदर यह बात चलती रहती है कि यार ये मजहब कैसा मजहब है, हम मुसलमान हैं, हमें सताया जा रहा है, ये लोग मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये समझते हैं कि ये अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर आया है, हालांकि अल्लाह का अजाब नहीं है, ये अल्लाह की रहमतें हैं। इसके जरिए अल्लाह गुनाह माफ करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके जरिए जो सवाब अता फरमाएंगे कल क़यामत की। जो मुसीबत तकलीफ आज हमें दी जा रही है, वो कारोबार के एतबार से हो या किसी जान के एतबार से हो, माल के एतबार से जो आज तकलीफें पहुंच रही है, या मजहब और शरीयत के एतबार से, इन सब के ऊपर हमें अज्र व सवाब मिलेगा अगर हम इस मजहब में डटे रहे, अगर हम इस मजहब में चलते रहे, अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करते रहे, तो इस चलने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सवाब अता फरमाएंगे। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो दिल के मुसलमान नहीं, सिर्फ जबानी मुसलमान है, तो वो इस तकलीफ को समझते हैं कि क्यों यार हम इस मजहब में फंसे हुए। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने मजहब इस्लाम को छोड़ भी दिया है। क्यों? इसलिए कि वो मुसलमान है ही नहीं थे। जो सही मानों में मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, वो कभी भी इस मजहब को छोड़ नहीं सकता, चाहे कितनी तकलीफें आ जाए। जैसे हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह, हजरत अम्मार यासिर रदी अल्लाह, हजरत खब्बाब, कितने मुसलमान थे। और जो नए नए मुसलमान होते हैं, जिन्होंने मजहब इस्लाम के अंदर आकर अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी नहीं की, वो लोग छोड़ते हैं मजहब को। जो लोग अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी कर रहे हैं, उन्हें तो तकलीफों में और मजा आता है, उन्हें तो तकलीफों में और मजा। बुखार है, किसी को बुखार चढ़ा हुआ है, और बुखार में जब नमाज पढ़ता है तो कितना मजा आता है, बगैर बुखार के इतना मजा नहीं आता जितना बुखार के अंदर नमाज पढ़ने से मजा आएगा। सर में दर्द है, सर में दर्द के बावजूद वो नमाज पढ़ रहा है, तो उसमें जो लुत्फ आएगा, जो मजा आएगा, वो बगैर सर के दर्द के नमाज पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो तकलीफों में जो अल्लाह के हुक्म पर चलने पर मजा है, वो बगैर तकलीफों के नहीं है। तो आजमाइश तो जरूर होगी हमारी। इसलिए फरमाया, तो लोगों ने क्या समझ लिया, जो नए मुसलमान थे, जिनको मुनाफिकीन कहा गया है, तो लोगों के सताने को अल्लाह का अजाब समझ लिया। ये लोग आज जो हमें सजा रहे हैं, ये अल्लाह का अजाब नहीं है, ये तो हमारी आजमाइश है। ये क्या है? आज कुरान से हम समझे हैं कि देखो आपके सामने, फैज़ा उज़िया फिल्लाह, जब सताया जाता है अल्लाह के रास्ते में, जअल फितनतन नास, तो लोगों के सताने को समझ लिया का अजाब इल्लाह, अल्लाह के अजाब। हालांकि अल्लाह का अजाब नहीं है, ये तो हमारी आजमाइश है और इसके ऊपर हमें सवाब मिलेगा। फरमाया, वलइन जाअ नस्रुम मिन रब्बिका, और अगर आती है तेरे रब की तरफ से कोई मदद, अगर मुसलमान आज हमें कोई मदद पहुंचती है, या उस वक्त के मुसलमानों को कोई मदद अगर पहुंचती थी, तो यूं कहा कर आकर मिल जाया करते थे, लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना माकुम, हम तो तुम्हारे साथ में हैं, हम तुम्हारे से अलग नहीं है, हमें भी माल दो बांट करके, हम मुसलमान हैं। और जब तकलीफ पहुंचती थी फिर भाग जाया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया है। सूरे हज के अंदर जो आयात हैं, उनके अंदर तो मुनाफिकीन का बिल्कुल नाम नहीं लिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, लेकिन आज के सबक में मुनाफिकीन का नाम लेकर कहा है कि ये मुनाफिकीन दगाबाज हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को आजमाएंगे। आजमाइश जरूर होगी, सही मुसलमान और जो गलत मुसलमान है, उन सब की छटाई जरूर होगी। और ये हर मजहब, हर दौर में ऐसा हुआ है, हर दौर में ऐसा हुआ है। वलइन जाअ नस्रुम मिन रब्बिका लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना माकुम अवलैसल्लाहु बिअअलम बिमा फी सुदूरिल आलमीन, क्या नहीं है अल्लाह खूब जानता है उसको जो आलमीन के दिलों में है। यानी ये लोग जो ऐसा खेल खेल रहे हैं, इससे भी बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके दिलों की बात भी जानता है कि इनके दिल में ईमान है या नहीं है, इनके दिल में ईमान है या नहीं है, अल्लाह इसे भी जानते हैं। और अल्लाह क्यों ऐसा करते हैं उसका जवाब भी दिया है, वलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, ताकि जान ले अल्लाह के जो ईमान वाले हैं, और जान ले उन लोगों को जो दगाबाज मुनाफिक है। वलयअलमन्नल मुनाफिकीन,
اللہ آزماتے ہیں کہ صحیح مسلمان کون ہے، غلط مسلمان کون ہے. جو منافقین کہتے ہیں دغا باز. اور وہ کیسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس آیا تو ہم تمہارے ساتھ میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور غیروں کے پاس گیا دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، دل کے اندر کفر اور شرک بھرا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت ایسے مسلمانوں کو مرنے سے پہلے ہی چھانٹ کر رکھ دیں گے، انہیں وہیں پہنچا دیں گے جہاں سے آیا. اور نہیں تو پھر مرنے کے بعد ہو ہی جائے گا ایسا. جو آدمی، حدیث شریف میں آیا، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ انہی میں اٹھایا جائے گا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا بارہ کہ ہولی کے موقع پر ایک حافظ صاحب نے کیا کیا تھا کہ یہ ہندو جو ہے غیر مسلم جو ہے رنگ پھینک رہے، پان کھا رہے تھے، پان کھاتے ہوئے کلی کر دی ایک بیل کے اوپر، ایک دیوار کے اوپر، کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس سے. جب ان کو موت آئی تو پھر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ان کے جو چاڑے ہوتے ہیں جہاں پر وہ جلاتے ہیں اپنے مردوں کو، وہاں پر پڑے ہوئے ہیں حافظ صاحب. اور ان سے اگر پوچھا گیا کہ آپ تو حافظ صاحب تھے، آپ تو قرآن پڑھتے تھے، آپ کا یہ حشر کیوں ہوا؟ کہا کہ میں نے ایک مرتبہ یہ کر دیا کہ غیر رنگ چھڑک رہے تھے، میں نے دیکھا دیکھی، میں نے منہ سے کلی کر دی، اللہ رب العزت نے اسی کے اوپر پکڑ لیا، کہا کہ تو اسی میں ہے. آج مسلمان بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، تہوار کس کا ہے اور منا رہے ہیں کون؟ تو کل قیامت کے دن ایسے لوگ، ایسے بچوں کو اگر مر گئے، ایسے لوگ اگر مر گئے جو اپنے بچوں کو یہ لا کر دے رہے ہیں، تو یاد رکھو ابھی قرآن کی آیت اگلی آ رہی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. تو ان کا حشر پھر کیا ہوگا؟ ان کا حشر انہی میں ہوگا جن لوگوں کی مشابہت اختیار کر دیں. جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے وہ مشابہت اختیار نہیں کرتا، وہ تو اپنے نبی کے طریقے پر، وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اگلی آیت میں آیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا. دیکھیے جو مسلمان ہوئے تھے نئے نئے، تو کچھ لوگ انہیں بہکایا کرتے تھے، کچھ لوگ انہیں بہکایا کرتے تھے. بڑے بوڑھے آ کر کے، نوجوان طبقہ جو مسلمان ہوا تھا، تو بڑے بوڑھے آ کر کیا کہا کرتے تھے کہ تم کس چکر میں پڑھ رہے ہو؟ نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ کرنا، لڑائی لڑنا، کیوں جھنجٹ میں پڑے ہوئے ہو؟ آ جاؤ اپنے مذہب میں پھر لوٹ کر کے. کاروبار تمہارے ٹھپ ہو گئے، گھر بار تمہارے چھین لیے گئے. بڑے لوگ آ کر سمجھایا کرتے تھے. ہجرت سے پہلے کے واقعات ہیں جو قرآن اس آیت کا شان نزول میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو نئے نوجوان مسلمان ہوئے تھے تو کیا کہا کرتے تھے کہ تم اپنے پھر سے کفر میں لوٹ کر آ جاؤ، کیوں جھنجٹ میں پڑے ہوئے ہیں؟ اور ایک آدمی کی بات کو مان لیا تم نے. ہم اتنے لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں، ہماری بات کو تم مان نہیں رہے ہو. ایک آدمی کے کہنے پر تم نے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی. تو یوں کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بال سفید ایسے نہیں ہو گئے دھولے، اور ہماری ہڈیاں ایسے کمزور نہیں ہو گئی، اتنی زندگی گزار لی. یاد رکھو تم اگر ہم اس مذہب میں پھر لوٹ کر آ گئے تو ہم تمہارے ساتھ میں. بھلا ہم اتنے ہمارے بال سفید ہو گئے، ہم جس مذہب میں لگ رہے ہیں غلط ہو سکتا ہے؟ آ جاؤ لوٹ کر کے. اس طرح کی بہکاوا ہے. اور یوں کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں شک لگتا ہے نا کہ گناہ کر رہے ہیں تم کفر میں اور شرک میں، تو جتنے گناہ تم کرو گے نا کل قیامت کے دن ہم اٹھا لیں گے. قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ جتنے گناہ کرو گے اگر تم پکڑے گئے تو یوں کہہ دیو کہ جی فلاں نے ہمیں بہکایا تھا، اس کے مشورے سے ہم غلط چل گئے تھے، بس یوں کہہ دیو. اللہ نے کہا کہ یہ کوئی بھی تمہارے پاس نہیں لگیں گے جتنے بھی ہیں. اللہ رب العزت نے اس کا رد کیا ہے. دوسری بات، اب جو لوگ کسی کے بہکاوے میں غلط کام کریں گے سب کا وبال اس کے اوپر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم بادشاہ کے پاس جب اپنا مبارک تبلیغی خط بھیجا تو اس میں یہ لکھا کہ بادشاہ سلامت، میری بات کو تسلیم کر لو، نہیں تو آپ کی غریب رعایا، یعنی جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، جو آپ کی رعایا کے اندر لوگ رہتے ہیں،
इन सब की गुमराही का वबाल कल कयामत के दिन तुझे उठाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ था उस खत में। अगर तू हिदायत कबूल नहीं करता है और गुमराही इख्तियार करता है, क्योंकि बादशाह सलामत ये जितनी आपकी रियाया हैं सब आपके पीछे चल रही है। अगर आप हिदायत पर आ गए सब लोग हिदायत पर आ जाएंगे, और अगर आप गुमराह रहे तो सारे लोग गुमराह रहेंगे, और अगर गुमराही पर मर गए और तू भी गुमराह मर गया तो अपना तो बोझ उठाएगा ही। इन सब की गुमराही का बोझ भी इनकी गुमराही में से नहीं कटेगा कुछ भी। इनके गुनाह इनके ऊपर बदस्तूर बाकी रहेंगे, लेकिन इसके बदले इन सब का मजमुआ जितना गुमराही का गुनाह होंगे वो सब तेरे ऊपर थोपे जाएंगे। और अगर तू हिदायत पर आ गया तो जितनी तेरी रियाया है, ये जितने लोग हिदायत पर चलेंगे, इन सब का सवाब भी तुझे मिलेगा। हदीस शरीफ में आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी हिदायत की बात बताता है, किसी को समझाता है, किसी को सही रास्ता बताता है, उस सही रास्ते पर चलने वाले कयामत तक जितने भी लोग आएंगे उसके कहने सुनने से एक आदमी के, अब जितने भी लोग कयामत तक चलेंगे उन सब का सवाब इसको मिलेगा और उनके सवाब में बिल्कुल घटत नहीं की जाएगी। और अगर किसी के गुनाह के ईजाद करने से, जैसे आज शादियों में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, अब वो दूसरे के यहां होगी पड़ोस में, वो भी कहेगा रे फलाने पटकाए थे तो मैं कम हूं थोड़ा। अब इसने जो गुनाह किया है ये भी कर रहा है, इसके देखा देखी जो गुनाह हो रहा है इसको तो गुनाह मिलेगा ही, लेकिन इसके गुनाह में से भी इतना ही गुनाह इसके ऊपर भी रखा जाएगा जिसके देखकर इसने काम किया है। ये हदीस है। आज मुसलमान इसी तरीके से चल रहा है, इसी तरीके से वो लोग बहकाया करते थे, जिसको कुरान मुकद्दस में बयान किया। फरमाया वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तो वो लोग बड़े लोग क्या कहा करते थे नौजवानों से, वो लोग जो काफिर हैं मुनकिर हैं वो कहते हैं लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से, इत्तबिऊ सबीलना, हमारे रास्ते पर चलो। क्या कहा करते थे आकर, हमारे रास्ते पर चलो। बाल सफेद हो गए, हम इतने समझे सोचे आदमी और तू नौजवान होकर के आज एक आदमी की बात पर मान गया, चल हमारे रास्ते पर। और यूं कहा करते थे वल्लाहमिल खतायाकुम खतायाकुम, अगर कल कयामत के दिन तुम पकड़े गए तो हम बूढ़े आदमी, हमारा नाम ले दिए जी फुला के मशवरे से ऐसा किया था। अल्लाह क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम उठा लेंगे तुम्हारे गुनाह, जितने तुम्हारे ऊपर गुनाह होंगे सब हम कह देंगे जी हमें दे दो जी। अल्लाह क्या कह रहे हैं, वमा हुम बिहामिलीना मिन खतायाहुम मिन शै, दरा हालांकि वो उनके गुनाहों में से कुछ भी नहीं उठाएंगे। ये अल्लाह ने फैसला कर दिया है। जब अल्लाह कह रहे हैं बात तो फिर चल सकती है कोई बात वहां? जब अल्लाह ने खुद दुनिया में कह दिया कुछ भी नहीं उठा सकते हैं, एक भी गुनाह नहीं लेंगे उन पे से, बल्कि कुरान करीम के अंदर आया इस्तबर्रा अल्लज़ीना तबऊ मिनल्लज़ीना तबऊ वराउ, कि जब वो लोग जिनकी इत्तिबा करते थे शैतानों की, तो शैतान कहेंगे जी हमारी राह पर चले थे, हमने इनको गुमराह किया था, लेकिन हमने जो गुमराह किया था हम इनसे बेताल्लुक है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम कोई सिफारिश नहीं करने वाले इनकी। जिस तरीके से हम गुमराह हैं, जिस तरीके से हम जहन्नमी हैं, इनको भी जहन्नम में डालो। इतनी बात तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते कि हम जहन्नमी हैं तो इन्हें जन्नत में ले जाओ जी। ये कुरान करीम की आयत है। इसलिए भाई किसी के चक्कर में नहीं आना, अपने ईमान के ऊपर साबित कर दी रहे, नेक अमल करते रहो। किसी के बेका, बहुत से मुसलमान भाई भी कह देते हैं ऐसा, अरे चल हम देख लेंगे, हमारे तो हमें कह दिए तू, हमारे ऊपर तेरा बोझ, हमारे ऊपर तेरा बोझ, हालांकि कुछ भी नहीं उठाएंगे कल कयामत के। भाई भाई के काम नहीं आएगा, बीवी शोहर के काम नहीं आएगी, कुरान तो ये कह रहा है। तो फिर ये बूढ़ा आदमी क्या काम आ जाएगा तेरे, जो कह रहा है तुझे बहका रहा है, ये क्या काम आ जाएगा? जब बेटा बाप के काम नहीं आएगा और बाप बेटे के काम नहीं आएगा तो फिर इनकी क्या हैसियत है? भाई कुरान तो ये कह रहा है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी, कि कोई किसी के काम नहीं आएगा तो फिर इनकी क्या हैसियत है जो बेकार है। इसलिए कुरान की बात को समझो, अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए, दीन पर चलना आसान बनाए। मामला कुछ अलग होगा वहां का, कयामत का, इसलिए यहीं से सुधार लेकर चलना पड़ेगा, वहां नहीं सुधरेगा मामला। फैसले अदालत में नहीं सुलझते, घर से सुलझ कर चलते हैं तो तब अदालत सुलझाती है।
जब घर से नियत करके चलेगा आज निपटाना है तो तब निपटेगा, अगर नहीं निपटा निपटने का नहीं। तो यहीं से लेकर चलना पड़ेगा सही रास्ता, वहां नहीं सही रास्ता आप पा सकते हैं। इसलिए फरमाया वमा हुम बिहामिलीन मिन खतायाहुम मिन शै, और दरा हाला के नहीं उठाएंगे उनके गुनाहों में से कुछ भी। अल्लाह क्या कह रहे हैं, इन्नहुम लकादिबून, ये सब के सब झूठे हैं। अल्लाह ने झूठे कह दिया इन्हें। तो अब समझनी है बात, अब समझनी है बात कि जितने लोग दीन के बारे में आज हमें बहका रहे हैं, तड़िया दे रहे हैं, धमका रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। एक अल्लाह की रास्ते पर चलते रहो, अगर तकलीफ पहुंचेगी कोई सब्र के साथ चलो जैसे सहाबा चले, लेकिन इस रास्ते से, जिस रास्ते पर आप आ गए हो, इस रास्ते को छोड़ना नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो हिदायत मिली है, इस हिदायत में अल्लाह मजीद तरक्कियात हमें सबको अता फरमाए। अल्लाह दीन की हम सबको समझ अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका।